Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Vani, and here is the second lecture in the series of IPC. And today we are going to deal with the constituent elements of crime. In my last video, I got various feedbacks that I should be using a mixed language of Hindi and English, so I'll try it in this video. However, in that video also I have taught in Hindi after the English version ended, so you can go and check that out. So starting with the constituent elements of crime. तो क्राइम क्या है? क्राइम इज बेसिकली अ वर्ड, ऐसा शब्द है क्राइम जो कि रॉन्गफुल एक्ट को सोसाइटी ने दिया है, जो कि लीगल लैंग्वेज में उसको ऑफेंस बोला जाता है. क्राइम इज बेसिकली अ वर्ड दैट इज गिवन बाय द सोसाइटी टू अ रॉन्गफुल एक्ट विच इन लीगल लैंग्वेज इज नोन एज एन ऑफेंस. अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, कि क्राइम, कोई भी क्राइम होता है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या होते हैं. मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स या इंग्रेडिएंट्स या तत्व होते हैं, अगर वो प्रेजेंट होंगे, वो एक्ट्स होंगे, वो सर्कमस्टांसेस होंगी, सारी अगर साथ में प्रेजेंट है तो वो एक्ट जो होगा उसको एक क्राइम बोला जाएगा. यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं ये जो चार. हम व्हेन वी गो थ्रू वेरियस टेक्स्ट बुक्स ऑन आईपीसी वी कम टू अ कंक्लूजन दैट देयर आर बेसिकली 4 elements that constitute a crime. First one is a human, second is a prohibited act, third one is guilty mind. This is commonly known as actus reus and this is known as mens rea, and fourth one is injury. हम लोग सेकेंड और थर्ड एलिमेंट से डिटेल में डील करेंगे सिंस दे फॉर्म द कोर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम. Fourth one also forms, but it is not an absolute essential since there are various crimes where no injury is needed. Even the possession of certain things are an offense, are offenses, and sometimes certain preparation to commit another offense is itself an offense, like preparation is also an offense. So this is not an absolute principle, but for a surface view we can say that the word injury is defined under section 44 of Indian Penal Code, which defines it as to denote any harm caused illegally to a person in its body, mind, reputation or प्रॉपर्टी. यहाँ पे जो बेसिक इंजरी का मतलब है जो आईपीसी में दिया हुआ है, हमारी आईपीसी में, कि हार्म इलीगली कॉज होना चाहिए, दूसरे पर्सन को होना चाहिए. और किस किस चीज में हार्म कॉज हो सकता है? बॉडी में, माइंड में, रेपुटेशन में और प्रॉपर्टी में. अगर इन चार चीजों में हार्म हो रहा है किसी पर्सन के और वो हार्म इलीगली कॉज हो रहा है, देन वी कॉल इट एन इंजरी. And first element of human is a logical, can be deduced from logical interpretation, since no animal, and it is illogical to penalize an animal even if he commits some act which is dangerous or which if committed by a human it would have been a crime. मतलब कि अगर किसी एनिमल ने कोई एक्ट किया, अगर वो एक्ट किसी इंसान ने किया होता, ह्यूमन बीइंग ने किया होता, तो वो क्राइम होता. सेम एक्ट कोई एनिमल कर रहा है तो उसको पीनलाइज नहीं किया जा सकता. इट इज वेरी लॉजिकल इन इटसेल्फ. सो इट इज अंडर लॉ ओनली अ ह्यूमन बीइंग इज केपेबल ऑफ committing a crime and only a human can be penalized. So first one is needs no
longer explanation. Therefore, we will be dealing with the actus reus and mens rea in detail, since they are the core elements of any crime, and they are very important from any एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आईपीसी किसी सिलेबस में भी है तो वहां पे एक्टस रियस और मेंस रिया से क्वेश्चन आना इज वेरी कॉमन. Therefore, we will be dealing with the actus reus and mens rea in detail. So, first one is actus reus. Actus reus का एक्टस रियस जो वर्ड था, पहले हम लोग मैक्सिम देख लेते हैं. मैक्सिम एक लैटिन मैक्सिम है जो इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम पे बनी हुई है. मैक्सिम बेसिकली व्हाट इज अ मैक्सिम. हम लोग लीगल मैक्सिम्स पढ़ते रहते हैं, दिस लीगल मैक्सिम, दैट लीगल मैक्सिम. व्हाट इज दिस लीगल मैक्सिम? मैक्सिम, द वर्ड मैक्सिम कम्स फ्रॉम द वर्ड एक्सियोमा. Axioma means these are some rules or principles that are accepted by most number of people or universally accepted. So ऐसे कुछ principles जो universally accepted है, मतलब कि इनका definition does not depend on the territorial boundaries or any other kind of boundaries. और axiom मतलब होता है कि सेल्फ प्रूव्ड प्रिंसिपल्स, स्वयं से, इसके हिंदी होती है स्वयं सिद्ध. स्वयं सिद्ध जो होते हैं वो एक्सियोम्स बोला जाता है. तो मैक्सिम आर बेसिकली दोज रूल्स एंड दोज प्रिंसिपल्स दैट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रिगार्डलेस ऑफ रिगार्डलेस ऑफ एनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज. सो दिस इज मैक्सिम. तो ये जो फर्स्ट मैक्सिम हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज दी actus non facit reum nisi mensit rea. एक्ट, अब वर्ड बाय वर्ड जो इसमें मैक्सिम में वर्ड्स यूज हुए हैं, इसका वर्ड बाय वर्ड लीगल मीनिंग है. एक्टस मीन्स एक्ट, non means not, facet is a kind of Latin verb which means does, and reum means guilty. Nisi means accept, mens means mind, sit means is, it is also a verb. Rea means guilty. रियम गिल्टी का सिंगुलर फॉर्म है और रिया इज प्लूरल फॉर्म ऑफ गिल्टी. सो अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिम, एन एक्ट डज नॉट इन इटसेल्फ मेक अ मैन गिल्टी एक्सेप्ट हिज माइंड इज गिल्टी. सो दो एसेंशियल जो इस मैक्सिम से पता चलते हैं आर एक्टस रियस एंड मेंस रिया. एक्टस रियस जो वर्ड था, दैट वाज कॉइन्ड बाय Professor Kenny. Professor Kenny. In his book Outlines of Criminal Law, 1902 में फर्स्ट एडिशन आया था इस बुक का. और इसी बुक में प्रोफेसर केनी ने ये टर्म एक्टस रियस कॉइन किया था. एक्टस रियस टर्म कॉइन करने का मतलब फर्स्ट टाइम इन्होंने दिया था. इट माइट बी बेस्ड ऑन दिस मैक्सिम एक्टस रियस. और इसका मतलब इन्होंने बताया था, जो इन्होंने डेफिनेशन दी थी, दैट वाज सच कंडक्ट, सच रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, such result of human conduct that law seeks to prevent. That law seeks to prevent. इसका मतलब
प्रोफेसर केनी ने कहा था, एक्टस रियस का मतलब होता है किसी ने कोई एक्ट किया, उस एक्ट से ऐसा रिजल्ट निकला जो कि लॉ उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। लॉ सोसाइटी में जो प्रिवेल कर रहा है वो नहीं चाहता ऐसा एक्ट हो सोसाइटी में, वो प्रिवेंट कर रहा है। अगर किसी कंडक्ट से वो रिजल्ट आ जाता है तो दैट रिजल्ट इज दी एक्टस रियस। जो इनकी डेफिनेशन थी, इसमें जो फोकस, जो एम्फेसिस पॉइंट है, इज दिस रिजल्ट। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अगर हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं कि ए ने बी को चाकू से मार दिया, स्टैब करके मार दिया, तो इसमें जो किलिंग हो रही है, द किलिंग इज द एक्टस रियस एंड इट्स नॉट द स्टैबिंग दैट इज द एक्टस रियस। तो ये रिजल्ट है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केनी, दिस result is an event that is different from the conduct that caused this result। मतलब दोनों चीजें डिफरेंट है, स्टैब करना डिफरेंट है, उससे किलिंग होना, उसका जो रिजल्ट है, किलिंग हो रही है, वो डिफरेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम इट इज द किलिंग that is the actus reus and not the human conduct of knife stabbing। But there is difference in opinion among jurists that what actually constitutes the actus reus, the human conduct or the result of such human conduct, which is different from the human conduct। So the most accepted view is that actus reus constitutes of three constituents। First is the human conduct, second is the result of human conduct, and the third is the circumstances to constitute any particular crime। That is the state of affairs। इसका मतलब ये हुआ कि एक्टस रियस तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इट इज बेसिकली, दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रैनविल विलियम्स। ही वाज अ जूरिस्ट हु सेड इनके अकॉर्डिंग क्राइम के दो एसेंशियल्स होते हैं, एक एक्टस रियस, एक मेंस रिया। मेंस रिया को एक्सक्लूड कर दो, दैट इज गिल्टी माइंड को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए तो जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स बचते हैं उस क्राइम के, एक पर्टिकुलर क्राइम के, वो एक्टस रियस फॉर्म करता है। तो इसके हिसाब से बेसिकली दिस इज कॉमनली एक्सेप्टेड व्यू कि एक्टस रियस पे ह्यूमन कंडक्ट होता है। ह्यूमन कंडक्ट के बाद उससे जो रिजल्ट निकल रहा है, दैट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट एक्टस रियस, एंड द सर्कमस्टांसेस, स्टेट ऑफ अफेयर्स जो पर्टिकुलरली किसी क्राइम या किसी ऑफेंस को करने के लिए चाहिए, उन दैट स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट एक्टस रियस। ये तीनों चीज मिलके एक्टस रियस बनाते हैं। जैसे कि अगर मैंने किसी को मारा, किसी को पत्थर मारा, तो मेरा पत्थर फेंकना एक्टस रियस है, उस इंसान को पत्थर लगना दैट इज द रिजल्ट, वो एक्टस रियस है। और सर्कमस्टांसेस
कि मतलब मेरा पागल ना होना, जो कि जनरल एक्सेप्शंस में कवर्ड है। अगर कोई चीज जनरल एक्सेप्शन में कवर्ड है, जो कि चैप्टर 4 में दिया हुआ है आईपीसी के, अगर उसमें कवर्ड है तो वो दैट इज नॉट एन ऑफेंस, क्योंकि वो जनरली एक्सेप्टेड है फ्रॉम द डेफिनेशंस, फ्रॉम फॉर्मिंग अ क्राइम, जनरली एक्सेप्टेड है। तो मेरा पागल ना होना भी it also forms the part of actus reus, because it is forming the part of the state of affairs. So human conduct, result of human conduct, and the circumstances in which such conduct has been committed and the result has been ensued. Now first one is conduct. What is conduct? Conduct basically means any willed act, any willed act, इसका मतलब हुआ willed, का मतलब हुआ वॉलंटरी, वॉलंटरी। विल मतलब होता है स्वेच्छा, तो खुद से, खुद की विल जो होती है, अगर आपने कोई एक्ट किया जो आपके माइंड में था, आपकी विल में था, आपने वॉलंटरली किया, तो दैट इज योर कंडक्ट। अगर आपकी विल में नहीं थी, आपसे जबरदस्ती करवाया गया, तो दैट इज नॉट योर एक्ट, दैट विल नॉट बी रिगार्डेड योर एक्ट अंडर लॉ, सिंस an act against your will is not your act. It is a commonly accepted principle under penal law. We will see it afterwards. So conduct is any willed or voluntary act. To form an actus reus, the conduct or the act should be voluntary in nature. अब voluntary क्या होता है? Voluntary has been defined under section 39 of IPC. Section 39 of IPC defines voluntarily, and it defines it as that a person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means he had the reason to believe to be likely to cause by it. So voluntarily can be understood that a person, कोई पर्सन को तब बोला जाता है कि उसने कोई चीज वॉलेंटरली की है जब वो ऐसे मीन्स से करता है जहाँ की वो इंटेंड कर रहा है उस एक्ट को करने का, या इट का मतलब है कि जो इफेक्ट कॉज हुआ है। सेक्शन 39 जो आईपीसी का है वो इस वर्ड से शुरू होता है कि एक पर्सन एक इफेक्ट को कॉज कर रहा है वॉलंटरीली। ये तब कहा जा सकता है जब वो उसको ऐसे मीन्स से करता है जिससे वो इंटेंड कर रहा है उस इफेक्ट को कॉज करना। यहाँ पे वर्ड इट यूज हुआ है, तो इट का मतलब जो इफेक्ट हो रहा है उसको उसने इंटेंड किया था कि ये इंटेंशन था कि ये हो जाएगा, ऐसे मीन्स उसमें एम्प्लॉय किए, या तो जब वो मीन्स एम्प्लॉय कर रहा था, मतलब वो मीन्स वो एक इंटेंडेड उसका कॉन्सिक्वेंस था, रिजल्ट लाना चाह रहा था वो, और उसको करने के लिए जो वो काम कर रहा था, जो मीन्स था उसका, उसको एम्प्लॉय करते समय उसको पता था, ही न्यू और हैड रीजन टू बिलीव
और हैड रीजन टू बिलीव कि वैसे मीन से वो उसको कॉज कर देगा, इट वुड कॉज द इफेक्ट। इसका मतलब वॉलेंटरली वर्ड में दोनों प्रेजेंट है, द इंटेंशन एंड द नॉलेज। इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है। इसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन का इंटेंशन नहीं ना भी हो किसी इफेक्ट को कॉज करने का, पर उसने ऐसे एक्ट किए हैं और एक्ट करते टाइम उसको पता था कि ऐसा इफेक्ट कॉज हो सकता है, उसकी नॉलेज में था। इंटेंशन और नॉलेज में ये डिफरेंस होता है। व्हेन वी विल रीड मीन्स हियर वी विल रीड इट इन डिटेल, बट जो बेसिक डिफरेंस होता है, इंटेंशन हमेशा इफेक्ट को लेके होता है कि आप क्या इफेक्ट इंटेंड कर रहे थे, आपका आशय क्या था। बट जो नॉलेज होता है, आप उस आशय को कॉज करने का उस इफेक्ट को कॉज करने का आपका आशय नहीं है, आपका इंटेंशन नहीं है वो कॉज करने का, लेकिन आपको पता है कि आपने ये एक्ट किया तो वो इफेक्ट कॉज हो सकता है। तो अगर आपको ये पता भी था, भले आपका आशय ना हो, आपको सिर्फ पता था, सो नॉलेज इज डाइल्यूटर देन द इंटेंशन। सो अगर आपको ये पता भी था, भले आपका आशय ना हो, तब भी आपको ये माना जाएगा कि आपने वॉलेंटरीली वो एक्ट किया है, आपने जानकर पूरे विल के साथ ये एक्ट किया है, भले आपका आशय ना हो। तो दोनों चीजें इसमें कवर्ड होती हैं। एक इलस्ट्रेशन भी सेक्शन 39 में दिया है कि कोई पर्सन है, वो रॉबरी कॉज करने के लिए किसी इनहैबिटेड प्लेस पे आग लगा देता है। उसका इंटेंशन नहीं रहा किसी की डेथ कॉज करने का, पर इस सिचुएशन में जब वो इनहैबिटेड प्लेस मतलब जहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो उस प्लेस पे आग लगाता है रॉबरी कमिट करने के लिए। उसका इंटेंशन रॉबरी कमिट करने का था, पर इनहैबिटेड प्लेस पे आग लगाओगे तो जाहिर सी बात है किसी की डेथ कॉज होने का इफेक्ट कॉज हो सकता है, वहां पे डेथ हो जाती है। उसका इंटेंशन रॉबरी का था ना कि किसी की डेथ कॉज करने का, डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि ही हैज वॉलेंटरीली डन दैट एक्ट दैट कॉज्ड द डेथ, ही इज वॉलेंटरीली कॉज दैट डेथ, जबकि उसने इंटेंड नहीं किया था। तो ये इलस्ट्रेशन इस बात को क्लियर करता है कि अगर आपने कोई एक्ट किया है जिसका एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। अब प्रोबेबल क्या होता है, इट्स रीजनेबल मैन फोरसाइट, दैट इज कि अगर रीजनेबल मैन है और वो किसी काम को फोर्सी कर सकता है, काम करते हुए उसके इफेक्ट को फोर्सी कर सकता है, देन दैट विल बी द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एक्ट। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस अगर कॉज हो रहा है आपके एक्ट से, भले आपने वो कॉन्सिक्वेंस इंटेंड ना किया हो, बस वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। अगर वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है आपके एक्ट का, then also it will be called that you have caused that voluntarily, आपने जानकर उस एक्ट को किया, उस इफेक्ट को कॉज करने के लिए। So this was the definition of voluntarily. Section 32 and 33 of IPC also give certain things about an act. So section 32 talks about words referring to acts include illegal omissions. Section 32 of IPC says that words referring to acts include illegal omissions. इसका मतलब है कि जहां जहां आईपीसी में वर्ड एक्ट आएगा, वहां वहां इलीगल ओमिशन भी मतलब होगा।
इलीगल ओमिशन मतलब अब क्या हुआ, ऐसा ओमिशन जो कि अपोज्ड है, दैट इज अपोज्ड टू लॉ। ओमिशन, अब ऐसा ओमिशन क्या हो सकता है, आई विल गिव यू अ सिचुएशन। एक बच्चा डूब रहा था, पानी में डूब रहा था, रिवर में डूब रहा था। उसको एक स्विमर देख रहा था दूर से, वो डूब गया बच्चा, वो मर गया। तो यहाँ पे जो ओमिशन है, क्या वो इलीगल ओमिशन है? यहाँ पे क्या ओमिट करके स्विमर ने अगर उस बच्चे को नहीं बचाया, उसने ओमिट किया उसको बचाने से, तो क्या इट इज अ लीगल ओमिशन और नॉट? It is not an illegal omission since there was no duty on the part of the swimmer to save that child. There was no legal obligation there. वहाँ पे सिर्फ एक मॉरल ऑब्लिगेशन या मॉरल ड्यूटी थी. इट वॉज नॉट द लीगल ड्यूटी और द लीगल ऑब्लिगेशन. सो दैट ओमिशन इज नॉट एन इलीगल ओमिशन. अब कोई जेलर है, वो एक कैदी को, एक प्रिजनर को खाना नहीं देता है, और वो खाना नहीं देता है इस वजह से वो मर जाता है, जो प्रिजनर था वो मर जाता है. यहाँ पे जो जेलर है उसने इलीगल ओमिशन किया, क्योंकि यहाँ पे उसकी लीगल ड्यूटी थी कोई काम करना, और उसने उस ड्यूटी को ओमिट किया, हेंस दैट वाज द इलीगल ओमिशन. सो जहाँ जहाँ वर्ड एक्ट्स आएंगे, वहाँ वहाँ इलीगल ओमिशन अपने आप इस एक्ट में इंक्लूडेड है. इसका मतलब जो एक्ट उस ऑफेंस को बना रहा है, एक्ट किसी ऑफेंस को बना रहा है, पर वही सेम कॉन्सिक्वेंस जो ऑफेंस के लिए एक्ट सीरियस है, सेम एक्ट सीरियस कमिट हो जाता है, बट वो कमिट होता है किसी पॉजिटिव एक्ट से नहीं, बल्कि एक नेगेटिव ओमिशन से. देन ऑल्सो इट विल कॉन्स्टिट्यूट as much crime as some positive act would have. इसका मतलब हुआ कि जो वर्ड एक्ट सीरियस है, एक्ट है, it has both aspect. The positive aspect में भी इसको पढ़ा जाता है and the negative aspect also. नेगेटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट मतलब आपने कुछ किया, पॉजिटिव कर रहे हो आप. पॉजिटिव मतलब आपने कुछ किया, फिजिकल डूइंग की, वो एक्ट पॉजिटिव हो गया. पर एक चीज है, आप कुछ ना करके भी कुछ कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, नेगेटिवली परफॉर्म कर रहे हो, बट आपके उस नेगेटिव परफॉर्मेंस से, जहाँ पे आपकी लीगल ड्यूटी थी, आपने कुछ नहीं किया और वहाँ पे कोई ऑफेंस हो जाता है, दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट एज मच ऑफेंस एज द पॉजिटिव एक्ट वुड हैव. इस सेक्शन का यही मतलब है. एंड द नेक्स्ट सेक्शन, द सेक्शन 33 ऑफ IPC, दैट प्रोवाइड्स दैट कि कहीं पे वर्ड आ रहा है एक्ट या ओमिशन, सेक्शन 33 एक्ट या ओमिशन वर्ड आ रहा है, तो दैट वुड इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्ट्स and this would include series of omissions. किसी क्राइम को, किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए अगर वेरियस स्टेप्स हैं, कई एसेंशियल्स हैं, और उन एसेंशियल्स को बारी बारी किया जा रहा है, तो उसको एक एक्ट भी बोला जाएगा. मतलब एक्ट सीरियस एक एक्ट हुआ, पर उसमें कई सारे एक्ट्स आ रहे हैं, तो एक्ट इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्ट्स. अगर कहीं सीरीज ऑफ एक्ट एक्सप्रेसली इंक्लूडेड नहीं है, तो वन वर्ड एक्ट would include the series of acts also, or the omission would include the series of omission as a single omission or a single act. Single act will denote series of acts
And single omission, the word once omission, if it is mentioned, that this meaning would include that it might include a series of omissions as well. And अनदर एक्टर सीरियस, जो अनदर एक्टर सीरियस का एसेंशियल है, इज दैट द एक्ट मस्ट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ. कोई ऐसा एक्ट जो कि प्रोहिबिटेड नहीं है पर वो गिल्टी माइंड से किया जा रहा है, उससे किसी को इंजरी भी हो रही है, बट इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, देन इट वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एक्ट सीरियस. Act prohibited by law. Act prohibited by law. मैं आपको इलस्ट्रेशन देती हूँ. जैसे मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया है, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, पर मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का इंटेंशन जो है, मेरे किसी कलीग या कंपेनियन ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था. मैं चाहती हूँ उसके कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे पास आ जाए, उसके कुछ व्यूज़ मेरे पास आ जाए. उसके चैनल को नुकसान पहुँचाना मेरा मोटिव है, मेरा इंटेंशन है. मैंने यूट्यूब चैनल रन किया, उसके सब्सक्राइबर्स हो सकता है कम हो गए, उसके व्यूज़ कम हो गए, मेरे चैनल पे आने लगे. उसका कंटेंट मैंने देखा, मैंने पढ़ा, उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज किया, मैंने अपने चैनल पे बताया, तो मेरा चैनल इम्प्रूव्ड दिख रहा है. इस वजह से सब्सक्राइबर्स मेरे पास आ गए. अब मेरा गिल्टी माइंड था और दूसरे यूट्यूब चैनल को इंजरी भी हुई, बट दिस विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी एक्ट सीरियस, सिंस माई एक्ट ऑफ टीचिंग ऑन यूट्यूब और इम्पार्टिंग on YouTube is not culpable or is not penalized or is not prohibited by law. So this would not constitute act as serious since it is not prohibited by law. So this forms this act prohibited by law an essential element of act as serious. हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम पढ़ रहे हैं. अब उस एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम में एक एलिमेंट था एक्ट सीरियस. अब क्या क्या चीज़ें एक्ट सीरियस कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, वो एक्ट सीरियस के एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे. तो उसमें हम लोगों ने देखा ह्यूमन कंडक्ट, और ह्यूमन कंडक्ट कैसा होना चाहिए, वॉलेंट्री होना चाहिए, वॉलेंट्री होना चाहिए. और एक्ट का हम लोगों ने मतलब देखा, जो सेक्शन 32, 33, और वॉलेंट्री एक्ट का क्या मतलब होगा वो सेक्शन 39 में देखा हम लोगों ने. और जो नेक्स्ट इसका एसेंशियल है वो ये है कि एक्ट जो है, जो एक्ट आप ह्यूमन कंडक्ट कर रहे हो दैट, और जो कॉन्सिक्वेंस हो रहा है उस कंडक्ट से, वो प्रोहिबिटेड होना चाहिए लॉ में. तो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट योर एक्ट सीरियस. अब कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपने इंटेंट कुछ और किया होता है, कॉन्सिक्वेंस कुछ और निकल आता है. जैसे आपने किसी को मारने के लिए उसको चाकू स्टैब किया, वो मरा नहीं, वो उसको इंजरी हुई, वो रिकवर हो गया. अब यहाँ पे जो एक्ट सीरियस था वो आपका चाकू स्टैब करना था, वो मरा नहीं, वो मर गया होता तो विद दैट कॉन्सिक्वेंस इट वुड हैव कॉन्स्टिट्यूटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड और द मर्डर. बट वो मरा नहीं, एक एसेंशियल डेथ का फुलफिल नहीं हुआ. बट आपने जो एक्ट किया था चाकू स्टैब करने वाला, वो कल्पेबल था, वो कल्पेबल था. दैट एक्ट वॉज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. आप किसी को चाकू स्टैब नहीं कर सकते हो, तो आपने दूसरे किसी ऑफेंस का एक्ट सीरियस फुलफिल किया. दैट वुड डिपेंड ऑन द इंजरी दैट पर्सन वुड हैव गॉट, कि आपको आपके चाकू स्टैब करने से उसको कितना इंजरी हुआ, उसके हिसाब से आपका एक्ट सीरियस डिसाइड करेगा कि आपने कौन सा ऑफेंस किया था. तो इट इज़ नॉट दैट कि आपने कोई इंटेंशन से एक्ट सीरियस किया है तो
वही एक्ट सीरियस का आपको पनिशमेंट मिलेगा। ये इस प्रिंसिपल पे है कि एक्ट सीरियस इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ बोथ द थिंग्स, द ह्यूमन कंडक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंस। इसमें से एक भी कम होता है तो एक्ट से तो इसका ऑफेंस क्या होगा वो भी चेंज होता है। अगर आपका एक्ट सीरियस जो कि ह्यूमन एक्ट है, द ह्यूमन कंडक्ट है, उससे इंटेंट आपने कुछ और कॉज किया था, हो कुछ और जाता है, तो यू विल योर एक्ट सीरियस वुड चेंज and you will get the punishment accordingly. So this was all about this class of actus reus, and in the next class we will be dealing with the next element, that is mens rea. Thank you for watching and hope it helps.